Hey guys, welcome back to my channel. The show must go on. As I already disclosed the name, our today's topic is classification of nouns. This topic is very interesting. अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम्स में अपियर होना चाहते हैं तो उसमें आने वाले कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस के आंसर आपको आज के कॉन्सेप्ट से ईजिली समझ आ जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस मैं अपलोड करती रहूं, प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। एज डू गुड हैव गुड। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। I'll explain both the terms simultaneously. Countable noun is the name of something which can be counted. What it means? Nouns जिनको हम count कर सकते हैं. Then other side, uncountable noun is the name of something which cannot be counted. Means जिन nouns को हम count नहीं कर सकते, सिर्फ measure कर सकते हैं. In second point, it can be used in singular as well as plural form. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इन nouns को हम count कर सकते हैं, ऐसे ही इनको हम एक वचन या बहुवचन के रूप में रख सकते हैं. But in uncountable noun, only singular form is used. In the last point, common noun and collective noun come under this category. For example, 3 girls. Here number of girls are given and girl is common noun. Let's take example of collective noun under this category. That is team of football. Team word is for number of players. But in uncountable noun, we take proper noun, material noun and abstract noun. Here we take the example of Taj Mahal as for the proper noun, rice for material noun and happiness for abstract noun. Now you can see on your screen the examples of countable nouns and uncountable nouns. Firstly, look at the green icons. Eggs, burger, apple, watermelon, banana, carrots. These are all things that can be counted and comes under countable nouns. Then look at the pink icons. Milk, jam, flour, rice, sugar, honey. These are all things that can be measured, but we can't count them. So they come under uncountable nouns. Clear? Now, what is in front of your eyes? Conversion of uncountable nouns into countable nouns. What it means? कुछ चीज़ें हम अनकाउंटेबल थिंग्स में लेते हैं, बट जब उनको अलग किया जाता है, जब उनके साथ किसी चीज़ को और जोड़ा जाता है, तो वो बन जाती है काउंटेबल. लाइक फर्स्ट थिंग इज़ फर्नीचर. अगर हम फर्नीचर को सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो इसको हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ लिया जाता है. एज वी स्पीक, फर्नीचर इज़ वेरी ब्यूटिफुल. वी यूज़ इज़ हियर. बट जब हम फर्नीचर को अलग अलग लेते हैं, जैसे चेयर, टेबल, डेस्क, तो इनको काउंटेबल नाउन में लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, 2 चेयर्स, 1 टेबल. ओके. नाउ लुक एट द सेकेंड कमोडिटी, दैट इज़ वाटर. Water is uncountable, means we can only measure it. But जब इसके साथ glass word का यूज़ हो गया तो ये countable thing बन जाता है. Like 1 glass of water, 2 glasses of water. And last example is of hair. This is very important because हम में से बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि hair का plural hair ही होता है, hairs नहीं होता. इसको काउंटेबल फॉर्म में बनाने के लिए मैंने स्ट्रैंड वर्ड का यूज़ किया है. फॉर एग्जाम्पल, आई टेक 3 strands ऑफ हेयर टू मेक माई ब्रेड. नाउ आर नेक्स्ट पार्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर. दीज आर सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर नाउन स्टैंडिंग फॉर वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग.
जब हम एक पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग की बात करते हैं तो इसको सिंगुलर नाउन कहा जाता है। देन प्लूरल, नाउन स्टैंडिंग फॉर मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज सेड टू बी प्लूरल। अगर हम एक से ज़्यादा पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स की बात कर रहे हैं तो उसे प्लूरल कहा जाता है। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल्स। फर्स्ट इज टोमेटो, वी मेक इट प्लूरल बाय एडिंग es. Then second is book, we make it plural by adding only s. One more thing that you want to know, what are regular or irregular plurals? The plurals which are made by adding s or es are called regular plurals. For example, book, we make it plural by adding only s. Then the second word is fox, we make it plural by adding es. Then come to the second point. The nouns which do not follow the above rule while forming plurals are called irregular plurals. What it means? जैसे child का plural हम childs नहीं बनाते, children बनाते हैं, ठीक है। मीन्स इसमें हम कोई s और es ऐड नहीं कर रहे, हम इसको चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मैंने वो दिखाया आपको, मैन, मैन का हमने मैंस नहीं बनाया, हमने इसका बनाया मैन। जो थोड़ा सा नॉर्मल से हट के बनाए जाते हैं उनको बोला जाता है इरेगुलर प्लूरल्स। आई होप आपको मेरे वाला ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। Now we are going to do classification of nouns on the basis of gender. There are 4 types of gender: masculine, feminine, common and neuter. And the first type is masculine gender. The noun that denotes a male is said to be of masculine gender. जब हम किसी नाउन का यूज़ मेल पर्सन या एनिमल के लिए करते हैं तो उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैन, किंग, रूस्टर, लायन। सेकेंड वन इज फेमिनिन जेंडर। द नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ फेमिनिन जेंडर। नाउन जब किसी फीमेल पर्सन या एनिमल के लिए यूज़ करते हैं उसे फेमिनिन जेंडर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, विमेन, क्वीन, hen, lioness. Next is common gender. The noun that denotes both a male and a female is said to be common gender. जब हम नाउन का यूज़ मेल और फीमेल दोनों के लिए एक ही जैसे यूज़ करते हैं उसको कॉमन जेंडर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, चिकन, डॉक्टर, रिपोर्टर। व्हाट इट मीन्स? जैसे चिकन मेल और फीमेल दोनों के लिए एक सिंगल वर्ड यूज़ किया जाता है। डॉक्टर चाहे लेडी डॉक्टर हो चाहे जेंट्स डॉक्टर हो तो हम उनके लिए डॉक्टर वर्ड ही यूज़ करते हैं। ऐसे रिपोर्टर है, ऐसे जैसे टीचर है, टीचर चाहे हमें मेल टीचर है चाहे फीमेल है, दोनों के लिए हम टीचर वर्ड ही यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट वन इज न्यूटर जेंडर। द नाउन दैट डिनोट्स अ नॉन लिविंग थिंग इज सेड टू बी अ न्यूटर जेंडर। जब हम नाउन का यूज़ नॉन लिविंग थिंग्स को डिनोट करने के लिए करते हैं उसे न्यूटर जेंडर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टेबल, ट्री, हाउस, बोट, एट्सेट्रा। हियर आवर टॉपिक इज कंप्लीटेड। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।